एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 1 तिमोथी 1 चैप्टर 1 वर्स से 20 वर्स, जेरेमिया 5 चैप्टर 6 चैप्टर। 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान। पहला तिमोथियुस की पत्री 1 अध्याय 1 वचन से 20 वचन, यिर्मयाह की भविष्यवाणी 5 अध्याय 6 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 1 तिमोथी 1 चैप्टर 1 वर्स से 20 वर्स तक पढ़ेंगे। इंग्लिश में पहले पढ़ेंगे, फिर हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा आपके बिना इन वचनों के भेद समझना और इन वचनों का पालन करना असंभव है, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर तेरे आत्मा ही के कारण और तेरे आत्मा ही के द्वारा हम इन वचनों के अधीन हो सकेंगे और समझ के साथ इन वचनों का लाभ इस जगत में हम फैला सकेंगे। हमारी सहायता करो पवित्र आत्मा, इन वचनों को हम में फिट एंड फिक्स कीजिए, हमें ईश्वरीय रचना में लेकर आइए। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। चैप्टर 1 फर्स्ट वर्स से 20 वर्स तक पढ़ने जा रहे हैं हम। इंट्रोडक्शन। Paul reminded Timothy of his charge. The scope of the law is also the design of the gospel. First verse. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior and Lord Jesus Christ, which is our hope, unto Timothy, my own son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. As I besought thee to abide still at Ephesus when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine, neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions rather than godly edifying, which is in faith, so do. Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned, from which some having swerved have turned aside unto vain jangling, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor whereof they affirm. But we know that the law is good, if a man use it lawfully, knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, for warmongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine, according to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer and a persecutor and injurious. But I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Howbeit, for this cause I obtained mercy, that in me,
first Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. Now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory for ever and ever. Amen. This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare, holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck, of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. ठीक है, थैंक यू जीसस। देखिए बारंबार यहाँ पर कल भी मैं ये वचनों को पढ़ रही थी, थिस्सलुनीकियों की पत्री को, तब वही था वहाँ पर भी कि प्रेरित क्या कर रहे थे। जो लोग परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे माय फ्रेंड्स, ओके, जो परमेश्वर के वचन को ब्लास्फेम कर रहे हैं। हालेलुया। ये नहीं कि जो विश्वास में ऑलरेडी मौजूद है उनके साथ वो कड़ाई से बर्ताव कर रहे थे। विश्वास में जो मौजूद थे उनको एडिफाई किया जाता है। हालेलुया। उनको कुरिन्थियों के पत्र में लिखा है, सिर्फ खनखनाने वाले झनकार की तरह हमने नहीं बनना है। हालेलुया। हमने प्रेम रखना है परमेश्वर का, और हम जब किसी को सुधार लाते हैं तो हमारे अंदर से परमेश्वर का प्रेम बर्ताव करना चाहिए। देखिए प्रेरित ये लोग सब पनिश कर रहे थे, कुछ उनके ही बीच में से निकले हुए चेलों को वो पनिश कर रहे थे। वो कुछ लोगों को जानबूझकर ऐसे अपने झुंड में से अलग रख रहे थे, और उनको पनिशमेंट था ये, और उनका पनिशमेंट उनको शैतान के हाथों में छोड़ने के लिए रख दिया गया था, क्योंकि वो ज़िद्दी थे। ओके, तो यहाँ पे खुल्लम खुल्ला पवित्र आत्मा का प्रेरित जो है वो उनकी गुनाह को, उनके गलती को बता रहा है। हाँ, अगर आप गलती नहीं बता रहे, आप गुनाह नहीं बता रहे, तो आप टॉर्चर कर रहे इंसान को। समझ में आया? तो ये एरिया ऑफ लाइफ है, जब किसी बच्चे को पनिश किया जाता है तो एक साधारण एक सभ्यता के जीवन में भी सिखाया जाता है कि बच्चे को बताइए कि आपको किस कारण से पनिश किया जा रहा है। पवित्र आत्मा का प्रेरित जो है वो पौलुस भी उसका कारण बता रहा है, क्यों हमने उसको झूठ से अलग किया, और उसका क्या वजह है कि वो अब शैतान के हाथों में जाने वाला है, क्या कारण है। ओके, परमेश्वर का भी नबी आकर बताता था कि तूने क्या किया है, और फिर वो जाके बोलता था कि इसकी वजह से तुझे परमेश्वर से पनिशमेंट डिक्लेयर किया गया है। ओके, तो योना के जगह में हम देखते हैं कि वहाँ पर पूरे सारे देश के लोग, सारा जो जानवर होते हैं, चींटियाँ होती है, वहाँ से लेकर मनुष्यों तक, गर्भवती तक, सबने अपने ऊपर टाट ओढ़ लिया, राख डाल लिया अपने ऊपर, और राख में बैठ गए, और वो रोते हुए, विलाप करते हुए, छाती पीटते हुए पश्चाताप करने लगे थे। क्यों? क्योंकि कारण पता चला। आप कारण नहीं बताओगे और फिर आप बताएंगे कि आप पनिश कर रहे लोगों को। आप पनिश नहीं कर रहे, आप शैतान का काम कर रहे, टॉर्चर कर रहे हैं। हाँ, जगत के शब्दों में उसको कहा जाता है टॉर्चर। आमीन। तो अगर इस प्रकार से देखो, मूसा के बारे में अगर देखा जाएगा तो मूसा के बारे में बोला है कि देखा, मूसा के विरोध में बात किया और मिरियम क्या हो गया, कोड़ पकड़ लिए। बराबर है, लेकिन उसने बात क्या किया था उसकी ओर भी तो ध्यान दो। ओके, मूसा के बारे में उसने ये कहा था, क्या तू एक लौता ऐसा भविष्यवक्ता है, क्या हम नहीं कर सकते भविष्यवाणी?
वो भी कहीं तो कहीं उसके मन में कुछ तो ऐसा आ गया होगा कि मूसा बहुत भाव खा रहा है, बहुत अकड़ रहा है, हमको चाहिए वो नहीं दे रहा है हमको। ठीक है, क्या तू एक अकेला है क्या? क्या परमेश्वर सिर्फ तेरे से ही बात करता है क्या, हमारे साथ नहीं करता है क्या? हो सकता है ऐसा कुछ उसने भी ठोकर खा के वो डायलॉग बोल दिया होगा। ओके, तो यहाँ पे तो उसने परमेश्वर के वरदान के खिलाफ बात किया। ओके, मैं जो बात कर रही हूँ वो वरदान के खिलाफ नहीं, वो पवित्र आत्मा का प्रेरित जो है वो अपोस्टल प्रेरित जो पौलुस है वो खुद बताता है कि इनकी गलती क्या है। अगर आप गलती नहीं बताओगे, इंसान को पगलाए जैसे करोगे और उसको दहाड़ लगा लगा कर डराते रहोगे, अरे तो फिर आप टॉर्चर कर रहे हैं। ओके, ये एक सिस्टम होता है कि इंसान का माइंड टूटने का। ओके, टॉर्चर से इंसान का माइंड टूट जाता है, बिखर जाता है और फिर वो सही इंसान नहीं रहता है। ओके, उसकी पर्सनालिटी बिगड़ जाती है। तो आप उसकी पर्सनालिटी बिगाड़ना चाहते हैं, आप परमेश्वर का काम नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। इंसान को सुंदर बनाइए, आप प्यार से उसको पहले अपनी गलतियां बताइए। अगर वो नहीं सुधार सकता है तो आप उसको निकाल दीजिए अपने काम पर से, लेकिन टॉर्चर मत कीजिए। आप क्या चाहते हैं कि वो खुद वो काम छोड़कर जाए? तो आप ऐसा चाहते हैं तो दुनिया के लोग भी वैसे ही करते हैं, टॉर्चर करने से वो नौकरियां छोड़कर चले जाते हैं। ओके, तो आप भी वही कर रहे हैं, तो आप में और जगत में फ़र्क क्या रह गया, है ना? तो मैं आपके विरोध में नहीं बात कर रही हूँ। कल मैंने ये बातों के ऊपर बोला और आज भी यही वचन मेरे सामने आया है। मैं उन बातों के बारे में बोल रही हूँ। अगर मसीही इंसान है और कोई गलती कर रहा है और वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, आपको पुलपिट इसीलिए नहीं दिया गया है कि उसके सारे चिथड़े उड़ा दो। ओके, आपको लगता है कि वो शैतान है, आपको लगता है कि वो अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि उसकी पर्सनालिटी आपको परेशान कर रही है, तो आप अपनी जगह में, वो अपनी जगह में है। हालेलुया। क्योंकि हर एक 5 उंगलियां समानता में नहीं है, आपको सहन करना पड़ेगा, लेकिन आपको अकेले में लेकर जाना है और उसको डांटना है। हालेलुया। और हाँ, अगर उसके ऊपर कोई विपत्ति का ऐसा कुछ असर दिखाई देगा कि अगर मैंने इसको अभी फटकारा नहीं तो विपत्ति पड़ जाएगी उसके ऊपर, निश्चित है फिर आपने उसको फटकारना है, सबके सामने रहे या कहीं पर भी रहे, ताकि वो विपत्ति से बच जाए। ओके, वो बात अलग है, वो तो आपका प्यार है कि आप उसको बचाए रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको उसके अकल बहुत ज़्यादा लगती है और आपको उसका गुस्सा आ जाता है और आप सोचते हैं कि मैं इसके ऊपर अपना गुस्सा निकालूंगा, तो आप अपनी फ्रीडम को ग्रांटेड ले रहे हैं। हालेलुया। देखिए, आप जो बोएंगे आप वो काटेंगे। आप भले ही बोलते होंगे कि हमारे बच्चों को हम अच्छे तरह से संभाल रहे, सब कुछ अच्छा है कोई, लेकिन बोना तो आपका जो हो रहा है, अगर आप दूसरों को टॉर्चर कर रहे तो निश्चित है आपकी पीढ़ी में कोई तो ऐसा इंसान सफरिंग करने वाला है। आप सही ढंग से बर्ताव कीजिए जब आपके पास अधिकार है। हालेलुया। तो इसके लिए मैंने कल के भी वचन में ये बोला था, आज भी मुझे परमेश्वर का वचन यही मिल रहा है। और सच कहूँ तो मेरा मन व्याकुल हो जाता है जब मैं एक इंसान को देखती हूँ और वो समझ नहीं पा रही है, वो लड़की, कि उसे डांटा क्यों जा रहा है। वो समझ नहीं पा रही है। ओके, वो नहीं समझ पा रही है किस लिए उसको डांटा जा रहा है। वो सिर्फ बौखलाए जैसे अपने तरीके बदलने की कोशिश कर रही है। उसको लगता है मैं ऐसे करूँगी तो सही रहेगा, मैं वैसे करूँगी तो सही रहेगा। अरे भाई, तुम बताओ तो सही सीधे तरह से उसकी गलती क्या है। ओके, चलो मान लो उसकी गलती है और वो सुधार नहीं रही है, तो बिल्कुल सही तरह से उसको रेसिग्नेशन दे दो। आप टॉर्चर क्यों करते हैं ऐसे करके? ना वो घर के ना घाट की ऐसे हो जाती है। वो एक जान है, वो एक प्राण है, वो एक परमेश्वर की लाडली बेटी है। आप आपकी लाडली नहीं है, लेकिन वो
हमारी लाडली है, क्योंकि हम परमेश्वर में उसको लाडली बेटी देख रहे हैं। हालेलुया। वो किसी न किसी जगह में उसके कमज़ोर अवस्था के कारण आपके हाथों के नीचे वो आ चुकी है और वो पकड़ी गई है और वो कोई तरह से उसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है। सही ढंग से आप इस्तेमाल करो। टॉर्चर करके पर्सनालिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो पर्सनालिटी तो टूटेगी, कोई बात नहीं है, लेकिन टॉर्चर का आपके घर में भी आप किसी न किसी के लिए एक गड्ढा बना के दे रहे हैं। हालेलुया। तो ध्यान रखना, जैसे आप कर रहे हो वैसे, चाहे आप खुद अपने घर को अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, लेकिन आप जो काम दिखा रहे हैं दूसरों को टॉर्चर करके, वो आपके जनरेशन में भी लिखा जा रहा है। हालेलुया। तो ध्यान रखिए इस बात का। हमने कोई आपके विरोध में बात नहीं रखी है, और ना ही मिरियम की तरह हमने मूसा को जैसा बोला था वैसा हम नहीं बोल रहे। ये तो पौलुस खुद भी बता रहा है, गलती बता रहा है। ओके। और पिछले कल के अध्याय में भी बताया, गलती बताया उसने। बिना गलती बताया आप किसी को कैसे सुधार सकते हैं? हालेलुया। उसको तो जगह भाषा में, वर्ल्डली भाषा में टॉर्चर कहा जाता है। आमीन। टॉर्चर से सिर्फ पर्सनालिटी टूट जाती है, व्यक्तिमत्व टूट जाता है। तो ऐसे बताइए, ओके चलो कोई बात नहीं, ऐसे बताइए कि मैं आपकी पर्सनालिटी तोड़ रहा हूँ, ख़त्म करो बात को, टूट जाएंगे वो। आपको 10 घंटे उसके ऊपर इतना दबाव डालकर उसे सताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कुछ पल में वो टूट जाएंगी उसकी पर्सनालिटी। कुछ तो बताइए, क्या कारण है कि आप उसे इतनी कड़ाई से व्यवहार दे रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर न्याय करेगा। आमीन। और दया के साथ न्याय करेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि परमेश्वर पनिश करेगा, नहीं, वो न्याय उस बेटी का करेगा, ज़रूर करेगा वो। आमीन। और मैं घुटने टेकूंगी उसके लिए। ओके, क्योंकि मुझे रोना आ जाता है उसकी हालत देख के। ओके, इसके लिए पहले तीमुथियुस पहला अध्याय हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी। 3 वचन से आगे, जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए जिनसे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूँ, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। आप टॉर्चर करने से प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। ओके। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं। तो टॉर्चर करना यह बकवाद हो गया है। हालेलुया। बकवाद हो गया है। आपका टॉर्चर करने का स्टाइल देखकर बकवाद ही लगता है आपके बारे में। ओके, बकवाद ही लगता है। अब आप बोलेंगे हाँ ये मेरा है, मैं जो करना चाहता हूँ करूँगा। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात ध्यान दिलाती हूँ, ये आपके जनरेशन में बोया जा रहा है। ओके, भले ही वो आपको अपने चौखट के अंदर तो सब कुछ साफ दिखाई देगा, लेकिन आने वाले पीढ़ी के अंदर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खतरा डाल दिया है आपने ऐसा करके। ध्यान रखिए इस बात का। ओके। और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए, देखो
व्यवस्था को उचित रीति से, व्यवस्था है ना आपके पास, आपके लोग क्या काम करना चाहिए, आपके लोग क्या काम नहीं करना चाहिए, व्यवस्था है ना, तो उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारिणी, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। हालेलुया। तो पवित्र बाइबल भी व्यवस्था दिया है। अगर आप कानून में देखेंगे, जो कायदे कानून होते हैं जग के अंदर, दुनिया के अंदर, उसमें भी आप देखेंगे यही सब कामों के विरुद्ध व्यवस्था है। ओके। और अगर बाइबल में भी, पवित्र बाइबल में भी देखेंगे तो व्यवस्था भी इन्हीं बातों के लिए दिया गया है कि ये सब करने वाले को पनिश किया जाएगा। आमीन। तो पनिशमेंट में अगर आपको दिखाई देता है कि ये बातों का कुछ मात्रा किसी के अंदर है और आप उसको पनिश कर रहे, तो उसको बताइए कि तुम्हारे अंदर ये प्रकार का कुछ है, इसकी वजह से तुमको इस प्रकार से बर्ताव किया जा रहा है। हालेलुया। लेकिन आप उसका तमाशा मत बनाइए। आमीन। मुझे अब बर्दाश्त करने का हद खत्म हो गया है। मैं घुटने टेक कर परमेश्वर से उसके लिए न्याय मांगूंगी। आमीन। और मेरा परमेश्वर दया का परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है। हालेलुया। वो मनुष्य की तरह टॉर्चर करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो निश्चित उस बच्चे के लिए कुछ ना कुछ रास्ता, और इतना सुंदर रास्ता देगा, दुनिया देखते रह जाएगी। हालेलुया। हम और पढ़ेंगे आगे। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। अनुग्रह के लिए धन्यवाद। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। हालेलुया। अंधकार की दशा में अगर कोई ऐसे गंदे काम कर रहा है तो फिर डेफिनेटली परमेश्वर की ओर आने से वो दया को प्राप्त करेगा, माफ़ी को लेगा और अपने जीवन को वो सुधारने का रास्ता ले सकता है। हालेलुया। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपने पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमीनयुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखे। हालेलुया। देखो, कारण दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना
ना सीखे। तो अगर उस बच्चे ने कुछ काम ऐसा गलत किया है जिसके कारण आप उसको इतना टॉर्चर कर रहे हैं सबके सामने, और उसके साथ साथ उसके संगति में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी उसको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, उसको तुच्छ नज़रों से देखते हैं, तो इतना सब करने से अच्छा है आप बता तो दीजिए उसकी गलती क्या है। हालेलुया। वो भी परेशान है, वो अपने चाल चलन सुधार रही है, वो अपने आप को ये फिटिंग वो फिटिंग, कैसे फिटिंग, किस तरह की फिटिंग, किस प्रकार के चेंजेस, वो परेशानी में है और आप उसको कुछ बता नहीं रहे हैं। मेरा परमेश्वर न्याय लाएगा। हालेलुया। वो दया का परमेश्वर, वो दया के साथ दोनों साइड से बैलेंस करके देगा। आमीन। प्रभु यीशु के नाम में मैं उसके लिए घुटने टेक कर परमेश्वर से न्याय मांगूंगी, क्योंकि मुझे उस बच्चे से प्यार है। आमीन। तो इस प्रकार से हम सब मिलकर ऐसे मसीहों के लिए हमेशा घुटने टेकना है जो व्यर्थ में परेशानी को सहन कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है वो परेशानी क्यों दे रहे हैं उनको। ओके, ये क्योंकि ये बात मेरे साथ भी हो चुकी है। मैं मिशनरी काम में एक अधिकारी के हाथों के नीचे गलती से चली गई थी और मुझे नहीं पता था वो अधिकारी मुझे क्या सिखाना चाहता है, मुझे नहीं पता था। लेकिन वो दोनों अधिकारी पद पर जो थे वो दोनों जन मुझे इतना टॉर्चर कर रहे थे और मैं समझ नहीं पा रही थी ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ओके, मेरा कौन सा ऐसा एरिया ऑफ लाइफ है कि इनके ध्यान में वो खटक रहा है। ओके, तो मैंने बारंबार सोचा कि ये तो कुछ जानबूझकर किया जा रहा होगा, या मेरा पर्सनालिटी तोड़ने के लिए किया जा रहा होगा, या फिर हो सकता है वो नहीं चाहते कि मैं इसमें कंटिन्यू रहूं। ओके, फिर मैंने परमेश्वर से जितना प्रार्थना किया उसका असर ये है कि मैं ऊंचा उठते गई, मैं उनके हाथों से छूट गई और मेरा जीवन परमेश्वर में और बढ़ता गया, निखरता गया, सुंदर बनता गया और ज़्यादा मात्रा में मैं परमेश्वर की सेवा को कर पाई। आमीन। तो इस प्रकार से हमारा जीवन परमेश्वर कुछ ना कुछ रास्ता देके छुड़ा लेता है। आमीन। अब मेरी ओर उनका देखने का भी जरिया नहीं रहता है, उनका सामना भी नहीं होता है। जैसा मिस्र से दूर कर दिया इसराइल को कि दोबारा मिस्र उनको कभी दिखने नहीं देगा परमेश्वर, ऐसा मुझे उन दोनों के हाथों से छुड़ा लिया कि अब दोबारा मुझे उनके हाथों में जाने का कोई कारण ही नहीं रखा है परमेश्वर ने। उनका स्मरण भी मुझे अभी कुछ डराता नहीं है और ना ही मुझे उनका कुछ काम मुझे याद आता है, क्योंकि सब खत्म हो गया। आमीन। सब कुछ खत्म हो गया। इस तरह से परमेश्वर खत्म हो गया, मतलब वो लोग अभी भी है पृथ्वी के ऊपर, लेकिन मेरा और उनका कोई भी मेल नहीं है इस बारे में। वो अपनी जगह में है और मैं अपनी जगह में हूँ। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि वो मुझ पर अपना दबाव को दिखा पाएंगे। हालेलुया। लेकिन उनकी आंखों के सामने मैं ऊंचे रास्ते चढ़ चुकी हूँ। आमीन। परमेश्वर ने मुझे ऊंचे रास्ते दिए और भले तरह से समझाया और भले सुधार से लेकर आया और भले तरीके से प्रेम में मुझे परमेश्वर ने बनाए रखा। हालेलुया। तो इस प्रकार से आप हर एक मसीह के लिए प्रार्थना करना है जो अगर आपके पास ऐसे बोलने आएगा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, तो परमेश्वर से न्याय मांगो, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो उनके लिए। परमेश्वर न्याय करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु सच में हमारे ऊपर अनुग्रह रखे, हम पर से वो अपनी दया करुणा कभी नहीं हटाएगा, उसकी शांतिदायक वाचा हम पर से कभी नहीं हटाएगा। ये उसका वचन है हमारे ऊपर, ये वचन हमेशा बरकरार रहे। सदा सर्वदा मैं परमेश्वर के घर में निवास करते रहूँगी और परमेश्वर की सच्चाई और करुणा मेरा पीछा करते रहेगी। नासरी यीशु के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कर पवित्र आत्मा इन वचनों में, और हम हमारे अंदर परमेश्वर का ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।